Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, कुछ सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट आई थी फॉर नोइंग सोल पर्पस और लाइफ पर्पस सो बहुत टाइम से दो सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट जो है वो पेंडिंग चल रही है, मिस ईशा बनर्जी एंड मिस संध्या कुमारी। इसके अलावा भी कुछ सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट आई थी काफ़ी टाइम पहले, बट दे नेवर inquired back for the reading. So I don't think they are still present on the channel, but Miss Isha Banerjee and Miss Sandhya Kumari are waiting since long. So let's continue today with their reading so that they will be able to start their life purpose soon. So let's start. So Isha, we have received two cards for you. And the first card is the card of judge, and second card is that of social worker. Uh, your card says, um, see, the judge card belongs to the justice, and social working card also belongs to justice thing. So your cards say, are you impartial and maintain strong ethics and high moral values in all life situations? Honesty and integrity are of utmost importance. Truthful communication is imperative. Speak the truth, know the truth, and live in the truth. And I just got attracted to the fairies which are here on the cards. इसके पहले भी सभी कार्ड्स में बनी थी, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई it grabbed my attention. So spirits are with you, and your social worker card says, do you have a strong desire to help people cope with their problems and challenges? Be an advocate for members of society that need aid due to their age or their health. A happy and healthy community is imperative for the well being of all, right? So, Miss Isha Banerjee, together your cards convey that you have to work with people to help them get justice. You may be working as a social worker, uh, or you may be working in the field of law, or you may be working as a judge. I can't say, but even then, it may be your passion to get justice for the people who need it, right? Because there are a lot of people who are not that much aware, who are not very well educated, um, and those whose circumstances are not favorable for them. And it's just see the light blinking. So you have to work for the people, right? And social working also involves animals as well. So you have to work for living beings, including people and animals. Um, you just need to analyze their what's happening. You just need to analyze their situations, and you need to make them aware. Just a second.
So you need to analyze their situations, and you need to know their story and their part where they will be needing the justice. And you have to analyze what's the basic root cause of their uh, of their issues. Um you need to work as a social worker, and you need to help them cope with their problems and challenges. Like, you have to give your voice to their problems, and you have to be an advocate for them. um, these can be the people who are of old age, or who are of very young age, who are orphans, who are in old age homes, who are on streets, um, who are handicapped, or who are in such situations which are not exactly um, favorable to survive for them. And it can be about um, a part of the society which is not very well educated, or which is not at all literate, right? So you have to work on building up a happy and healthy community by providing justice to all. So once you will start as a social worker, you have to see where these people are not getting justice. If you have the knowledge of law, it will be an additional advantage to you. If you don't have that knowledge, you can take help of some people who would like to provide you such knowledge regarding these cases, with whom you can share the stories of these people. मैं हिंदी में भी थोड़ा सा बोलती हूँ, आई एम वेरी सॉरी, आई मूव इन टू इंग्लिश ऑल द टाइम, बट तो ईशा, यू हैव टू वर्क एज अ, आपको सोशल वर्कर के तरह काम करना है, और आपको उन लोगों को जस्टिस दिलाना है जिनको जस्टिस नहीं मिलता है राइट सोसाइटी में। और आपको उनकी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को अपनी अपनी आवाज़ देनी है। इट्स लाइक कुछ ऐसा एक तबका होता है समाज का जो खुद अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, ऑर्फन्स हों, स्ट्रीट पर रहने वाले लोग हों, एनिमल्स हों, या आप मान लीजिए ओल्ड एज होम्स के बुज़ुर्ग लोग होते हैं, या फिर कुछ अपने ही घर में रहने वाले बुज़ुर्ग लोग होते हैं जो कि हेल्पलेस सिचुएशन में होते हैं। दीज कैन बी द पीपल जो कि हैंडीकैप्ड होते हैं, या जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते। यू कैन हेल्प दीज पीपल। आप उनसे पूछिए उनको उनके साथ क्या इश्यूज़ हैं, क्या उनके चैलेंजेस हैं लाइफ में। कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ उन्हें उनका जस्टिस नहीं मिल रहा है, हो सकता है उन्हें वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हों उस चीज़ के लिए, या उन्हें नॉलेज ही ना हो अपनी उस इशू से रिलेटेड। सो यू कैन हेल्प देम आउट, you can provide them with the knowledge, you can help them get the justice, you can give their case your voice, you can be their advocate। maybe आप एज एन एडवोकेट काम करते हो, और अगर आप नहीं एज एन एडवोकेट काम कर रहे हो तो भी इन दैट केस ऑल्सो यू कैन बी देयर एडवोकेट। क्योंकि सही चीज़ के लिए बोलना और गलत के लिए ऑब्जेक्शन रेज करना हर इंसान का एक राइट होता है। सो यू नीड टू डू इट। और जिनको इस बारे में नहीं पता, यू हैव टू ब्रिंग देम दिस लाइट, कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर वो लोग खुद अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो हर वक्त कैसे वो अपने चैलेंजेस से बाहर निकलेंगे? हर वक्त कोई उनकी हेल्प के लिए नहीं आ सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि जहाँ भी उनके साथ गलत हो रहा है, एटलीस्ट वो कुछ ऐसे लोगों के पास पहुँचे जहाँ पे उन्हें जस्टिस प्रोवाइड किया जा सकता है, या एटलीस्ट वो जानने की कोशिश तो करें उनके हक क्या हैं। एक बार वो अपने लिए आवाज़ उठाकर तो देखे। सो यू हैव टू गिव देम दैट स्ट्रेंथ एज वेल, एंड giving this strength and making them strong will definitely take some time, but till then you have to work as a social worker, as an advocate for them, right? तब तक आप उनके लिए अपनी आवाज़ दीजिए, ठीक है? आप उनके केसेस को अपनी आवाज़ दीजिए, आप उनकी एडवोकेसी कीजिए, आप उनकी कहानी जो है
उसको लोगों के सामने लाइए, उनके जस्टिस के लिए गुहार लगाइए। लोगों को अवेयर करिए कि कैसे कैसे केसेस होते हैं लोगों के साथ, और क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, अ, और लाइक कहाँ कहाँ अनअवेयरनेस है, कैसे इश्यूज आते हैं, कैसे चैलेंजेस आते हैं जब आप किसी को जस्टिस दिलाना चाहते हैं या कोई पर्सन अपने लिए जस्टिस चाहता है। कहाँ कहाँ एजुकेशन के लैक की वजह से इश्यूज होते हैं। तो यू हैव टू ब्रिंग all this information to the society। जब आप इस तरह से काम करते हैं तो डेफिनेटली एक अवेयरनेस आप सोसाइटी में जगा पाते हैं, जहाँ लोगों को पता चलता है कि हाँ, एक ऐसा वर्ग भी है समाज का जिन्हें कभी जस्टिस मिलता ही नहीं, क्योंकि उन्हें खुद को ही नहीं पता कि उनके राइट्स क्या हैं। उनको एग्जैक्टली पता नहीं है कि उनको जस्टिस कहाँ लेना है, कहाँ उनको बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, बोलना है तो क्या बोलना है, कहाँ अप्रोच करना है। वो अवेयरनेस नहीं है, वो एजुकेशन नहीं है, या फिर कोई हेल्प नहीं है, दे आर हेल्पलेस। ठीक है। एंड इन केस ऑफ एनिमल्स और अदर लिविंग बींग्स, बेजुबान है, दे नीड अ वॉइस फॉर देम, राइट। तो जब आप एज ए सोशल वर्कर काम करेंगे और जस्टिस दिला पाएंगे, अपनी स्ट्रॉन्ग एथिक्स को मेंटेन करेंगे, इम्पार्शियल रहेंगे, हमेशा ऑनेस्टी से वर्क करेंगे, हाई मॉरल वैल्यूज़ अपनी हर लाइफ सिचुएशन में आप फॉलो करेंगे, मेंटेन करेंगे। इंटेग्रिटी जो है वो की फैक्टर है इस काम में। इंटेग्रिटी से, ऑनेस्टी से आपको काम करना है। जब आप इस तरह से काम करेंगे, ट्रुथफुल कम्युनिकेशन जैसे कि इस काम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू कांट बी लाइक यू कांट मॉडिफाई द थिंग्स। ठीक है, यू हैव टू बी रियलिस्टिक इन दिस थिंग। yes, at times you can be diplomatic while conveying your things, but make sure that things are not modified. Reality should be reality, राइट। उसका रूप नहीं चेंज करना, उसको उसके सही रूप में, एग्जैक्ट रूप में ही लोगों को दिखाना है कि सच क्या है, और उसके बाद ही वो जो सच है उसको बदला जा सकेगा। तो जस्ट इन ऑर्डर टू लाइक इम्प्रेस a strong सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, या फिर किसी से डर के, या कहीं ना कहीं पार्शियल होके, किसी ना किसी रीज़न से यू कान डू दिस वर्क। सो यू ऑलवेज नीड टू बी इम्पार्शियल, एंड आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग एथिक्स और हाई मॉरल वैल्यूज़ इस काम में अपने मेंटेन करने हैं। एंड गॉड इज़ विद यू, सो यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड, यू नीड नॉट fear about it, and you need to be fair about it actually. So your message is work as a social worker, help people, bring justice to them, um, be an advocate for people's issues, give your voice to their challenges, to their issues, to their stories. um, be a communicator, speak the truth, know the truth, and live in the truth always. And justice is the key point of your reading. So judge card always doesn't mean that you work as a judge or you have to work as a judge, but yes, it means that you have to bring justice to the society, to the weak section of the society, right? And being a social worker, it can be done very nicely. So God has given you this opportunity, and I wish you all the very best. Along with that, I can give you a tip. अगर आपको लगता है कि आप कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, स्टार्ट विद योर नेबरहुड, और स्टार्ट विद द मेड ऑफ योर हाउस, और स्टार्ट विद द स्ट्रीट एनिमल्स, anybody, right? There are a lot of people around you who need justice. Along with that, you can start your
channel on any of the social media, YouTube or Insta or anything, FB, anything, you might be knowing more than me about it. And you can you can know the stories of people and help them get justice. And you can share their stories on your channel. आप अपने चैनल पे उनकी स्टोरीज शेयर कीजिए, जो भी आप उनके लिए गुहार लगा सकते हैं अपने चैनल के थ्रू, वो लगाइए। आप उनके लिए जस्टिस की मांग करिए। आप उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको लोगों के सामने रखिए। लोगों को, समाज को अवेयर कीजिए कि ये इश्यूज, ये चैलेंजेस हैं जो कि सोसाइटी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये अनअवेयरनेस है, अम, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये फियर है, अम, या ये लैक ऑफ कॉन्शियसनेस है, लैक ऑफ एजुकेशन है, जो कि समाज में कुछ एक गलत चीज़ों को हमेशा से बढ़ावा देता आया है। एंड वी ऑल नीड टू इरेडिकेट ऑल दैट ईविल, राइट? तो जब वो सारे इश्यूज और challenges लोगों के सामने आएंगे, only then some measures will be made to eradicate them, ठीक है? And it will all take time. So this is the high time that you need to start your purpose, and I wish you all the very best. Thank you so much, Miss Isha Banerjee. Let's move ahead with the second reading, and the second reading is for Miss Sandhya Kumari. So many cards have come. Let's take this card. And this was the top card in my hand when a lot of cards fell down. So I have taken this, and this was another one. Okay, fine. So Miss Sandhya Kumari, you have got two cards. One card is of spiritual teacher, and another card is of visual artist. You can see, right? And your visual artist card is based on the factor of art, and your spiritual teacher card is based on the theme of education, right? So your visual artist card says, do you have special awareness and notice form, color, textures, and geometrics? Tap into the world of artist. Tap into the part of you that is an artist. Allow yourself to receive inspiration, to think beyond the normal lens. Channel divine inspiration and organize your thoughts so that they manifest in your life. Your spiritual teacher card says, are you aware of your empathetic connection with others? I was just about to say this, but let's continue with it. It is the time to recognize your ability to discern your own thoughts and feelings from those outside of you. Develop your intuitive abilities and use them to assist others as they deal with life's issues. Be aware of being aware, right? So, together, your both cards say that you can be a spiritual teacher. I believe you're an empath, and you might be working as an empath, or as a spiritual teacher, or as an artist. But if you're not, then I'll suggest you to please meditate and work a lot on your hobbies, on your passions, and
never stop gaining wisdom. Try to gain more and more wisdom. Okay. Wisdom about spirituality. So Miss Sandhya Kumari, according to your cards, you need to make people conscious, you need to spread spirituality, you need to spread consciousness. So consciousness, you need to spread awareness among the people, among the masses. So you have to work with your art. If you work as an artist, you might be having a like good awareness, a good knowledge about colors, textures, or designs, or you might be working as some sort of artist, right? Some sort of geometrics artist or visual artist or something like that. And with your arts, you need to create some sort of art or some sort of project through which you can make people aware about the truths of the world, of the universe, of the cosmos, about the awareness which the masses need to know to be awakened. You need to spread a lot of light overall. ठीक है संध्या, मैं हिंदी में भी let me go through it once. Your cards say कि संध्या आप मे बी आर्टिस्ट के रूप में काम कर रहे हो, मे बी या फिर आप एज अ स्पिरिचुअल टीचर आप काम कर रहे हो, बट इन बोथ द केसेस यू हैव दैट कनेक्शन with the higher realms, and all the empaths do have that, so it's very common. um, सो मे बी आप एज एन एम्पैथ भी काम कर रहे हो, आप एज अ स्पिरिचुअल टीचर काम कर रहे हो, और अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो इन दैट केस ऑल्सो यू हैव दैट एम्पैथेटिक नेचर एंड you have that strong intuitive qualities within you. And if you're an artist, तो you might be receiving a lot of downloads about your art, और आपको अपने आर्ट के ज़रिए ही कुछ ना कुछ ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है लोगों के लिए जिसके थ्रू आप लोगों में कॉन्शियसनेस जगा सके, स्पिरिचुअलिटी जगा सकें, आप लोगों को अवेयर कर सके सच्चाई से, दुनिया की, पूरे यूनिवर्स की, पूरे कॉस्मोस की सच्चाई से, लॉज ऑफ यूनिवर्स से, लॉज ऑफ अट्रैक्शन से, लॉज लाइक लॉज ऑफ कर्मा से आप लोगों को लाइक के बारे में बता सकें. ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट स्पिरिचुअलिटी आप लोगों को दे सकें विद योर विद द हेल्प ऑफ योर आर्ट. ठीक है. और जो भी लोगों के लाइफ इश्यूज हैं, जो आजकल के टाइम में एक लाइफ इश्यूज होते हैं, लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ डिप्रेशन इन एवरी सेकेंड पर्सन, या फिर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को फिजिकल इश्यूज हैं, रेयर डिजीजेस के साथ बच्चे आ रहे हैं. दिस इज़ लाइक यू कैन टेल पीपल दैट दिस इज़ अबाउट सोल डिप्लीशन, जो लाइफ टाइम बाय लाइफ टाइम वी कैरी ऑल द बर्डन्स, ऑल द बैगेजेस ऑफ नेगेटिविटीज़. एंड देयर कम्स अ टाइम, एक टाइम आता है जब हमारी सोल पूरी तरह से, उसमें ताकत ही नहीं रहती. एक नया चोला वो लेती है, एक नई लाइफ वो लेती है, बट सोल में वो ताकत ही नहीं रहती वो जीवन जीने की. एंड इट इज़ कम्प्लीटली डिप्लीटेड बिकॉज ऑफ द पास्ट लाइफ टाइम्स जहाँ भी उन्होंने नेगेटिविटी और जितना भी बैगेज लिया होता है. एंड इन केस ऑफ ओल्ड पीपल या डिप्रेस्ड पीपल, या जो भी जिनको भी एंजाइटी का प्रॉब्लम है और इस तरह के डिजीज़ेस हैं, सोच सोच के बीमार हो जाते हैं, इन दैट केस ऑल्सो यही इशू होता है कि पूरी लाइफ उन्होंने जो नेगेटिविटीज़ कैरी की होती हैं, अपने हर्ट्स, पेन्स, वुंड्स कैरी किए होते हैं, जो भी गलत होता है उसको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं, उसको फॉरगिव करना ही नहीं चाहते हैं, सरेंडर होते ही नहीं हैं, राइट. एंड जो सिचुएशन है उस फ्लो में जाते नहीं हैं, चीज़ों को एम्ब्रेस करते नहीं हैं. They try to control everything, they try to manipulate everything, they try to be dominant over the laws of universe, and that's where
they feel defeated, because God knows better than us. तो वो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करते हैं, एंड अर्थ इज़ लाइक अ स्कूल वेयर वी ऑल आर सपोज टू लर्न थिंग्स फ्रॉम द सिचुएशंस. अगर किसी भी सिचुएशन में हम मैनिपुलेट करना चाहेंगे चीज़ों को, तो डेफिनेटली चीज़ें ऑपोजिट चली जाती हैं. अगर उस टाइम नहीं, तो आगे हम लाइफ में अपने कर्मा का जो रिजल्ट है वो फेस करते हैं. और पीपल शुड बी अवेयर कि अगर कोई लाइफ सिचुएशन बार बार उनकी लाइफ में रिपीट हो रही है, दैट मीन्स इट इज़ ट्राइंग टू मेक देम लर्न समथिंग. और जब तक वो उसे नहीं सीखेंगे, भागते रहेंगे या सप्रेस करेंगे उस चीज़ से, वो सिचुएशन बार बार उनकी लाइफ में आती रहेगी until and unless they will resolve their issues. And this resolution is very much important because, as I said, earth is like a school, and we are here to learn. तो जिस तरह से बच्चे स्कूल जाते हैं और क्लास बाय क्लास सीख सीख कर, चैप्टर बाय चैप्टर, और प्रमोट होते जाते हैं टू अ हायर क्लास, इन द सेम मैनर वी आर प्रमोटेड टू हायर फेज ऑफ आवर लाइफ. और हमें ज़्यादा से ज़्यादा विजडम मिलता जाता है. बड़े बड़े चैलेंजेस भी आते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस. जिस तरह से छोटी क्लास का एग्जामिनेशन पेपर शायद ईजी आता है, और बड़ी क्लास का जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर होता है शायद मुश्किल होता है. इन द सेम मैनर, जब हम छोटे होते हैं तो शायद कुछ हद तक, नॉट इन ऑल द केसेस बट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, वी फेस स्मॉलर चैलेंजेस. और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं एंड वी गेन एक्सपीरियंसेस, वी फेस bigger challenges in life, because then we are able to handle them properly. It's just that it depends on our past karmas, or the karmas in the same lifespan, कि हमने चीज़ों को किस तरह से हैंडल किया, सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल किया, कितने हम फ्लो में चले लाइफ के साथ, कितना हमने सरेंडर किया खुद को, कितना हमने फॉरगिव किया चीज़ों को, कितना हम पॉजिटिव रहे, कितना हमने एक्सेप्ट किया सिचुएशंस को, कितना हमने अपनी इंटेलिजेंस और फिजिकल स्ट्रेंथ और पीस ऑफ माइंड को मेंटेन किया इन ऑल द सिचुएशंस, किस तरह से हमने रिस्पॉन्ड किया अपनी लाइफ सिचुएशंस को. When we are aware of these things, then life becomes easier. In fact, life doesn't become easier, but it's like handling for us becomes easier. And this is what you need to tell to people being a spiritual teacher. ठीक है, आपको लोगों को यही समझाना है being a spiritual teacher that किस तरह से उनकी लाइफ जो है वो बेटर हो सकती है, उनके लाइफ के इश्यूज कैसे सॉल्व हो सकते हैं, उनके लाइफ के चैलेंजेस किस तरह से बेटर वे में हैंडल किए जा सकते हैं, जो उनके लाइफ के पास्ट हर्ट्स हैं, वुंड्स हैं, बैड एक्सपीरियंसेस हैं, वो किस तरह से कम किए जा सकते हैं या एक्सेप्ट किए जा सकते हैं. सो ये आपको लोगों को बताना है विद द हेल्प ऑफ योर आर्ट. एंड I'll give you a tip for that. You can create some sort of story. Like, I'm giving an idea, rest is up to you. You can start a project with some sort of story. It can be a story about anything, and in that story you need to raise some of the aspects which are very common in everybody's life. And उस स्टोरी के हिसाब से आपको लोगों को बताना है कि
एक कहानी चल रही है, उसमें ये एस्पेक्ट आए जो हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं और कैसे चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज आते हैं, और उस स्टोरी के माध्यम से ही आप लोगों को बताइए कि किस तरह से ये इश्यूज, ये चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व किए जा सकते हैं। और लाइफ एग्जैक्टली हमें यही सिखाती है, एंड दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी डज। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ योर आर्ट यू कैन हेल्प पीपल become more conscious, become more aware, ठीक है, become more educated about spirituality. And in case you are not working as a professional artist, then you can start a channel of yours, और यू कैन स्टार्ट योर क्लासेस एज वेल, जहाँ पे आप बच्चों को इस तरह से सिखाइए कि आगे फर्दर वो भी यही ज्ञान बाकी लोगों को दे सके, समाज में स्प्रेड कर सके। बट टिल देन, इफ़ यू वांट टू डू इट इंडिविजुअली फॉर सम टाइम, you can also start your own channel, as I said, and you can present your art on your channel. You can share your story on your channel, और धीरे धीरे करके एक एक लाइफ का आस्पेक्ट आप हर स्टोरी में या किसी एक ही स्टोरी में एपिसोड वाइज यू कैन लाइक हाईलाइट दैट आस्पेक्ट, कि एक ऐसा आस्पेक्ट भी लाइफ में आता है, लाइक जब सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, या सिचुएशंस ऐसी हो जाती है जहाँ हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते या दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते, या कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है जहाँ पे हम बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करना चाहते, बिल्कुल कंट्रोल करना चाहते हैं चीज़ों को, और बिगाड़ लेते हैं, बिकॉज हम लाइफ को उस पर्सपेक्टिव से कभी देख ही नहीं पाते जिस तरह से गॉड या डिवाइन उनको देख रहे हैं। तो समटाइम्स वी नीड टू मूव विद द फ्लो ऑफ द लाइफ, sometimes we need to accept the things, and every time we need to embrace whatever life holds for us, right? तो डेफिनेटली इट्स अबाउट चॉइस, क्योंकि हम जो चॉइस मेक करते हैं, हम आज जो भी चूज़ करते हैं, वो ही आगे हमारा फ्यूचर बनता है, वही हमारी डेस्टिनी कहीं ना कहीं क्रिएट करता है। अगर हम ये कहते हैं कि हम डेस्टिनी पहले से लिखवा के आए हैं, इन दैट केस ऑल्सो जो भी हम आज चूज़ करेंगे, वही रास्ता हमारा फ्यूचर बनेगा, और उसी रास्ते से जाते हुए कहीं ना कहीं हम अपनी डेस्टिनी तक पहुँचेंगे। लेकिन हमारी चॉइस हमें बताती है कि रास्ता कितना इजी हो सकता है और कितना मुश्किल हो सकता है। And of course, it's important to tell people how important it is to stay in gratitude, क्योंकि बेसिकली जो कुछ भी आज की डेट में हमारे पास है, वो कहीं ना कहीं हमारी पास्ट लाइफ या हमारी इस लाइफ की बहुत सारी मन्नतों का रिजल्ट है। तो इट्स नॉट राइट कि हम हर समय कंप्लेंट्स करें कि हमें लाइफ में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हमें लाइफ में जो कुछ भी मिला है, वो भी हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइफ टाइम में उसके लिए भी मन्नतें मांगी हैं, एंड दैट्स वाई वी हैव रिसीव्ड all what we have today. So it's very important to stay grateful for these things and not to take uh, what you have for granted. Nothing in the world needs to be taken for granted. Everything is here for some sort of learning, uh, and we all need to be grateful about it. सिमिलरली एक्सपेक्टेशंस आर अनदर थिंग, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को आज की डेट में डिप्रेशन है, बिकॉज दे expect that certain things should happen in their life or certain things should not happen in their life, and things should always move according to what they have expected, how they have expected in life, and that generally doesn't happen, which gives them depression. तो ये एक्सपेक्टेशंस जो हैं, ये भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है डिप्रेशन की आज की डेट में। तो ये सब चीज़ें हैं जो लोगों को समझानी बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी में। एज अ स्पिरिचुअल टीचर, दिस इज़ योर वर्क टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दीज थिंग्स विद योर आर्ट। ठीक है, सो another tip which I would like to give you is that you need to strengthen your intuition a lot, because everything you will be doing will be completely based on the downloads you will receive from the higher realms or higher dimensions or from divine. And meditation will bring you focus,
It will bring you your peace of mind. It will help you bring out what there exactly is. Let me just rephrase it. Meditation will help you bring out what's there exactly in your heart, and your focus, which you will get with the help of meditation. It will help you bring out your best presentation, through which you will be able to make people conscious about it, about spirituality, and about all the wisdom and knowledge, right? इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. मेडिटेशन से ही आपको हेल्प मिलेगी ये वाली, जिससे कि आप एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो अलग अलग फॉर्म्स में या अलग अलग स्टोरीज के ज़रिए, और अलग अलग एस्पेक्ट्स पर आप लोगों को लाइट दे सकते हो, लोगों को नॉलेज दे सकते हो, लोगों को कॉन्शियसनेस अवेयरनेस एजुकेट कर सकते हो कि कैसे स्पिरिचुअलिटी उनको हेल्प करती है लाइफ की सिचुएशंस को इजी करने में, इजीली हैंडल करने में. और स्पिरिचुअलिटी बेसिकली ये सिखाती है कि लाइफ कितनी ज़्यादा easy है. It's all about learning. It's not about attachments. It's not about duality. It's not about negativity. It's just about living your life peacefully and happily. And we all are here to learn something, right? So this is your work, Miss Sandhya Kumari. I hope मैंने काफ़ी समझा दिया है इससे related आपको. So in case you have some more questions, Miss Sandhya Kumari and Miss Isha Banerjee, both of you, if you have more questions or if you need any more ideas about it, you can definitely contact me. If you have any sort of queries related to healings or something, जिससे कि आपका फोकस इम्प्रूव हो, जिससे कि आपके खुद के अगर कोई इश्यूज हैं तो वो क्लियर हो जाए, सो दैट यू विल बी एबल टू डू योर पर्पस मच मोर इफेक्टिवली. यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी. जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे यू कैन डेफिनेटली मेल मी and I will be replying to you for it. Fine. And that's it for now. This is your life purpose, Miss Sandhya Kumari. Best wishes, and thank you so much, both of you. God bless us all. Good night. Bye bye.